Good morning, students. In DSE 303, we are going through our third unit, that is adaptability. I've discussed a lot with you about adaptability. Yesterday we did the same. So what we are going to discuss today? I discussed with you about big picture. I've discussed with you about your how to be specific about your goals. Goals के बारे में कैसे specific होना है. I gave you the example of three stone cutters जिन्होंने अलग अलग थॉट्स रखे. देन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ समटाइम्स वी फील कि आई एम वेरी लकी कि चलो मैं उस तरफ नहीं हूँ जहाँ लॉस हो रहा है. सो दैट टाइप ऑफ अ थिंकिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर our growth. Today what will we discuss? We will discuss about improvisation. What is improvisation? It is we'll start with a statement of an author. He said, that very author said, to create characters one must build background, and one of the tools we use is improvisation. Improvisation means कि we make things as we मूव अहेड. जो प्रिपेयर्ड नहीं होता है, सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड अ परफॉर्मेंस, अपने एक परफॉर्मेंस पे प्रिपेयर की, लेकिन सडन स्टेज पे कुछ ऐसा हो जाता है वेयर यू फील लाइक कि आपका वो प्रिपेयर्ड नहीं है. बट व्हाट डू यू डू गो फॉर इम्प्रोवाइजेशन देयर. वहाँ पे आप उसको स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हो. आप वहाँ पे कुछ ऐसा परफॉर्म कर देते हो विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड actually, but still you go for it, still you perform, still you give your best. उस चीज़ को आप इस तरह से उस गैप को आप फिल कर देते हो. सेम इज़ द केस वाइल योर टीम इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, यू विद योर स्मार्टनेस, विद योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद योर talent, you fill that very gap. That is called improvisation. So अलग अलग examples है कि I've made your improvisation term very clear. So it is an important part of soft skills. Soft skills में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी part है, because अगर चीज़ों में gap दिखेगा ना तो we won't be able to move ahead with that. वो gap fill करना is an art, and it is not that we are trained. We have to train our mind. जैसे body language है, we train our mind what is good, what is not good, how much is good for us. In the same way, what do we need to do? We need to train our mind for those situations where we are not ready for the situation. हम लोग तैयार नहीं है, but we need how to, that is called presence of mind. किस तरह से उस गैप को आपने फिल करना है. और ये जो है चाहे एकेडमिक डिसिप्लिन है, इन एकेडमिक नॉन एकेडमिक डिसिप्लिन है, वहाँ पे इट प्लेज इट्स वाइटल रोल और मेन रोल. even if you are performing on a stage, if you are delivering a lecture, if you are presenting something, by chance a gap is seen, you must know how to fill it up. ये पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल में भी हो सकता है. आपको वो गैप जो है फिल करना है. सो देयर ऑलवेज रिमेन्स अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन. यू माइट हैव हर्ड अबाउट सत्यजीत रे का जो एक स्टेटमेंट था, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन. तो इन परफॉर्मिंग थिएटर्स it is very very important. while a spontaneous performance is going on, but scripted नहीं है, उसमें कुछ चीज़ ऐसी scripted नहीं है लेकिन वो added है. so dance performances जो है improvisation उसमें बहुत ज़्यादा important है, where no pre-planned choreography is there. वहाँ पे कुछ भी pre-planned नहीं है. आपने कैसे choreograph करना है, क्या कौन से steps लेने, still you perform on stage and you give your 100%. that is called improvisation. in business dealing, it helps us to take decisions on the spot. Spontaneous decision लेने में चीज़ help करती है. Actually what is it? It is a conditioning of mind. मीन्स वेरी सिंपल लैंग्वेजेस कि आपको हर वक्त हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, और आपका माइंड कितनी स्मार्टली जो है वो उस चीज़ को रिसीव करता है, उसके ऊपर अपना रिएक्शन देता है. दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी एसेंशियल, और nowadays it has become an essential part of our life also. so this skill we can learn through practice only. what do we need to do? We need to प्रैक्टिस. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ये स्किल जो है हमें आता जाएगा. जितना हम एस्केप करेंगे, वील कीप ऑन मूविंग अवे फ्रॉम दैट वेरी थिंग. जो वो क्रिएटिविटी है, जो इम्प्रोवाइजेशन है, उससे हम दूर जाते जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ स्टेटस क्यू का जो आपका टॉपिक है. देयर इज वन थिंग वर्स दैन चेंज, दैट इज द स्टेटस क्यू. इट मीन्स कंडीशन और सिचुएशन एज इट इज़ नाउ. जिस सिचुएशन में आप अभी हो, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटस क्यू. और उस सिचुएशन को बदलना या चेंज करना, दैट एवर रिमेन्स टफ. बिकॉज हम एक पर्टिकुलर हैबिट को अडॉप्ट करते हैं, पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, तो व्हाट इज़ इट? इट क्रिएट्स
problem for us. Few people dare to question the status quo. They prefer to let the thing remains as they are. हम क्या चाहते हैं कि जो मेरी रूटीन है हम लोग उससे बाहर नहीं जाएंगे. Let me give you my example. Like when online teaching started, you know, every one of us, we were uncomfortable. You were uncomfortable as you were receiving videos. We were uncomfortable because we had to prepare videos. Slowly, steadily, what happened? We questioned ourselves whether our content is, whatsoever the content is going, whether it is, it is so good as we take our classes in that very effective way, whether we are able to communicate with our students or not. So what did we do? We just change the things. Painful रहता है process, but करना ज़रूरी है. रूटीन से हटके if you are doing something तो you are going for it. So one thing is very clear, whenever we change it brings development. growth होती है, change means growth, change means development. It creates discomfort, हम uncomfortable रहते हैं थोड़ा time, but it always brings something good in us, good for the world, good for society, good for individual also. So we shouldn't fear questioning the status quo. जो आज की हमारी condition है ना, उसको we should definitely question. Otherwise क्या होगा? Otherwise we won't be able to grow. So we should show courage and bold decisions to do something better. If we want to change the things where with which we are living today, only then world is going to be better. Our decisions would be bold and we'll be able to achieve something better. So the riskiest thing we can do is to just maintain the status quo. जो बॉब आइगर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, we should never forget that change is the rule of life. Change basic है, change is the rule of life. Many times we quote in class, many times we apply it in our lives, and many times we discuss it with others too. So change is progress, stagnation is death. We know अगर डेली लर्निंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आर नॉलेज वुड बी स्टैग्नेट, और स्टैग्नेशन इट सेल्फ मीन्स डेथ. स्लोली स्टेडली वो नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, विच मीन्स डेथ ऑफ द नॉलेज फॉर मी. सो बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज विच whosoever refuse to change themselves, they perished, they disappeared from the scene. वो गायब होगी. वही केस हमारे साथ रहता है. इफ़ वी वोंट चेंज, व्हाट विल हैपन? धीरे 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 हमारी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. सो प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी डायरेक्टली लिंक्ड है किस चीज़ के साथ? व्हेन वी क्वेश्चन आवर स्टेटस, व्हेन वी चेंज द थिंग्स. सो वी ऑलवेज नीड टू क्वेश्चन. जो आज का स्टेटस है उसको क्वेश्चन करना, इट इज़ वेरी ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज वी नीड टू क्वेश्चन द स्टेटस क्यू ऑन एवरीथिंग. in everything we need to put certain questions, whether they are good for us, whether it is necessary to continue with them, what are their positive impacts on our society or on us, what are their negative impacts, क्या ये न्यूट्रल हैं, इनको किस तरह से हम बेटर दे सकते हैं. So all these things need to be discussed. So in order to find out the answers of status quo, we have to delve deeper, we have to dive deeper. हमें ज़्यादा गहरा सोचना पड़ेगा. For development, for that we need open mind, open heart, and what else we need? We need open will. Our will is very important. इच्छा हमारी बहुत ज़्यादा important है. If we keep on trying to question our स्टेटस क्यों, जो हमारा एट प्रेजेंट स्टेटस है, इसको हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो विल कीप ऑन मूविंग अहेड टुवर्ड समथिंग बेटर. डेली विल बी एबल टू ऐड समथिंग न्यू. नहीं करेंगे तो विल स्टैग्नेट, खत्म हो गया काम, फिर वी वोंट बी एबल टू मूव अहेड. क्योंकि हमने ये तो पूछा ही नहीं कि जो आज मैंने किया ये क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है. इंडिविजुअल से हम शुरू करते हैं. सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स कि जो चल रहा है उसको बेहतर हम कैसे कर सकते हैं. सो जो ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनकी एक लाइन है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, यू शुड कीप ऑन क्वेश्चनिंग डेली. Question yourself, question others, question your parents. Each and every one should be questioned for the real development and growth of society as well as of the individual. If individual is developing, means family is developing, simultaneously society and country will also develop. So there is always a scope to do something better. There is no I in adaptability. It's very true. Whenever you go for I, जैसे जो अहंकार का शब्द है, अगर हिंदी में हम बात करें, जहाँ मैं आता है वहाँ विनाश होता है. It is said even in Hindi. So we need to replace I with we. When we are involved in a teamwork, then instead of saying I everywhere, we must refer to we. हम लोगों ने ये काम किया, हमने ये डिसीजन लिया, हमारी ये गलती थी, whatsoever it was, it should be with we. So adaptability is ability to accept challenges occurring in surrounding as well as at workplace. We have discussed earlier कि जो challenges हैं, जो changes हैं, उनको
एक्सेप्ट करना है. समटाइम्स सपोज यू आर फीलिंग कि इट इज़ वेरी टफ टू बी एट कॉलेज एट 10, लेकिन ये अडेप्टेबिलिटी है. यू हैव टू बी फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रियल डेवलपमेंट, फॉर लर्निंग, फॉर योर प्रोग्रेस आना पड़ेगा. आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, बट इफ़ यू फील कि सुबह जो बड़ी शांति होती है और मैं ज़्यादा टाइमली फोकस करके अपना काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू हैव टू लीव योर बेड अर्ली. या आपने लेट नाइट तक जागना है, आपकी अपनी एक रूटीन है, तो यू हैव टू फॉलो दैट. ओनली देन वी आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल. अदरवाइज क्या होगा, वी विल बी श्योर फेलियर्स. सो this is a quality of adjusting with others. We simply adjust with others. I'm not saying go for adjustment with some wrong values. गलत चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करना है. We should adjust with positive things and we'll have to adopt a very flexible attitude. At times you might have seen class हमारी जो है वो कमेंस होती है 10 बजे, अगर हम ऑफलाइन क्लास की बात करें. बट यू हैव योर रीजंस. यू फील लाइक वी गेट लेट बिकॉज बसेस नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है. हम लोगों की एक ही बस आती है, ज्वाला जी से हम स्टक हो जाते हैं, पैदल आना पड़ता है. तो इफ़ टीचर्स आर फ्लेक्सिबल, दे आर अलाउइंग यू वेरी सिंपल एंड यू आर एबल टू लर्न. Fine. If teachers are rigid, then you won't be allowed to enter into the class. If you want to be adaptable, अगर आप अडेप्टेबिलिटी चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करोगे. बोथ वेज वी हैव टू एडजस्ट. कभी आप जल्दी आते हो, कभी टीचर एडजस्ट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी बिकॉज वी हैव टू मूव अहेड, वी नीड टू प्रोग्रेस. सो if we want to be successful, what do we need? We need extra power, energy as well as then we can move ahead towards success. कामयाबी तो तभी मिलेगी if you are adding extra power. एक normal way में सारे लोग efforts डालते हैं. Large number of people they go for graduation. A few, शायद इस कॉलेज से 4 या 5 लोग जो है वो निकलते हैं. वो क्या करेंगे, अपना थोड़ा बहुत काम शुरू करेंगे. हार्डली 2 पीपल, अगर मैं ग्रेजुएशन से बात करूं तो हार्डली 1 या 2 बच्चे हैं वो बिकम सक्सेसफुल और वो अर्न देयर लाइवलीहुड प्रॉपरली. तो ये क्या है, दिस इज़ अडेप्टेबिलिटी. आप लोग उस तरफ अडेप्टेबल ही नहीं होते हो. डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी टेस्ट. व्हेन यू विल बी इन फाइनल ईयर देन यू विल प्लान, ठीक है एमए कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, आफ्टर दैट योर स्ट्रगल स्टार्ट्स. नहीं, स्ट्रगल तो फर्स्ट ईयर में शुरू हो गया ना. व्हेन यू डिसाइडेड टू बी इन कॉलेज, यू डिसाइडेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु जस्ट लेफ्ट देयर स्टडीज आफ्टर +2. सम ऑफ यू विल लीव देयर स्टडीज आफ्टर ग्रेजुएशन. Some of you will move ahead with a desire to go for masters. Masters करके क्या करना है, it should be very clear to you in the beginning when you will join masters. तो adaptability क्या है, अपने आप को एडजस्टमेंट देनी है कि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे अपनी रूटीन सेट करनी पड़ेगी, मुझे अपनी सेटलमेंट देनी पड़ेगी. ओनली आई विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल. सो वी शुड, व्हाट डू वी नीड टू डू, वी शुड सर्टेनली हैव न्यू आइडियाज़ एंड वी शुड बी एबल टू कन्विंस अदर्स. एक चीज़ है, वी शुड बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, वी शुड बी एडजस्टेबल. जहाँ सही चीज़ें हैं वहाँ पे. उसके बाद इफ़ वी हैव आइडिया, वी शुड शेयर दोज आइडियाज़ विद आवर टीम. वो आइडिया मैं अपने तक रखती हूँ, मैं टीम से शेयर नहीं करूँगी तो क्या होगा, इफ़ आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद माई टीम, तो वहाँ से जो ज़्यादा आइडियाज़ का फ्लो आना था वो मेरा रुक गया, वो मेरी ग्रोथ रुक गई. सो इफ़ आई एम विद माई टीम, आई एम बाउंड टू बी विद वे इंस्टेड ऑफ आई को अपने अपनी डिक्शनरी से, अपनी वोकेबलरी से साइड पे लेके जाना है. सो वी नीड टू पुट team efforts or will of the team first. So a person who forgets his individuality becomes a part of the team is bound to be successful. उसकी टीम जो है वो सक्सेसफुल होती है. और टीम के सक्सेस होने का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअली वी आर बिकमिंग सक्सेसफुल. सो the team members who are egoists, who always feel that I am always the right one, मैं हमेशा ठीक हूँ, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मेरी बात को रिसीव करना है, कंसीव करना है, एग्जीक्यूट करना है, उस तरह से नहीं होता. टीम मीन्स यू हैव टू लिसन टू ईच एंड एवरी पर्सन. उनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को हमने डिस्कस करना है और अल्टीमेटली हमने उस चीज़ पे वर्कआउट करना है जो हमें अपने गोल तक ले जाएगी और हमें सक्सेस देगी. सो अ गुड लीडर मस्ट हैव adaptability. एक गुड लीडर में adaptability होनी चाहिए and he should be able to carry on responsibilities. He never sets himself above his followers except in carrying responsibility. जो responsibility की carrying वाला एक attitude है, that should always be there. वो हमेशा रहना चाहिए. If we'll leave I behind, then it is what we call the skill of adaptability. कि मैंने I को पीछे छोड़ा है, टीम को मैं लेके चल रही हूँ, that is what we call adaptability. And if
वी डिस्कस दैट अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग. अगर हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना अपॉर्चुनिटी को, वी कैन यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी इन द बेस्ट पॉसिबल वे. ओनली देन व्हाट विल हैपन दैट वी विल बी एबल टू मूव अहेड. जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस थे वो शेड ऑफ हो जाते हैं. देखो इट इज़ वेरी टफ टू शेड ऑफ आई. जो मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरी प्राथमिकता है, जो मुझे प्राथमिकता मिल रही है, जो मुझे फोकस मिल रहा है, इफ़ आई एम गोइंग विद आई, तो ठीक है मैं करके मैं आगे बढ़ रही हूँ. लेकिन इफ़ वी आर मूविंग अहेड विद टीम, तो टीम के साथ क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती है. इफ़ आई एम गिविंग एग्जाम्पल of your home, you are working as a team. Some of your home chores they are managed by your mother, some of are managed by your father, some are managed by your grandparents, some are managed by you and your brother sister. एक दिन सारे काम करना बंद कर दो, what will happen? Same is the condition here. एक दिन सारा overburden कर दो किसी एक को, या मदर को कर दो, फादर को कर दो, या खुद पे ले लो कि सारा काम आज मैंने ही मैनेज करना है. जस्ट सी द चेंजेस कि किस तरह से चेंजेस आएंगे. जो चीज़ें मस्त मैनेज हो रही थी वो स्पॉइल हो जाती हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अडेप्टेबिलिटी. और अपने आई को कैसे छोड़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई डज चेंजिंग वंस डेली रूटीन मैटर. हमें डेली रूटीन की चेंजेस कैसे करनी है. जॉन सी मैक्सवेल की स्टेटमेंट है, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अनटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली. डेली रूटीन की चेंज करना is very important. John C. Maxwell is a very good speaker, very good motivator as well as author. So secret of our life is success in life is found in daily routine. If we are moving ahead with dull obsolete routine of ours, 8 बजे उठना है, उठते ही सबसे पहले कुछ खाना है, फिर बेड से निकलना है, दैट इज़ नॉट समथिंग गुड. अगर मुझे पता है कि आई नीड टू लीव माई बेड अर्ली, इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक इट इज़ गुड फॉर मी, इफ़ आई एम देन कमिंग एंड टेकिंग एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर मी, आई शुड गो फॉर इट, आई नीड टू चेंज. और अगर मुझे ऑफिस में कुछ रूटीन चेंज करना है, डेफिनेटली इट इज़ पेनफुल इन प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ, लेकिन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ. एक चीज़ की जो रूटीन है, इट फील्स आवर लाइफ विद डलनेस. बोर हो जाते हैं. मैनी टाइम्स वी फील लाइक ये बड़ी अजीब सी रूटीन है, वी आर जस्ट फंस गए इसमें. जैसे आप लोगों का एग्जांपल कोट करें, अपना करें. फॉर 6 months वी हैव बीन टू आवर होम्स, ठीक है. तो वो टू यू नीड टू डू, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बार बार आई बीन टेलिंग यू दैट डेवलप सम हॉबी. कुछ पेंटिंग का करो, कुछ ड्राइंग का करो, कुछ स्केचिंग का करो, कुछ राइटिंग का करो. डिवेलप हॉबी, चेंज समथिंग इन योर डेली रूटीन. बिकॉज एक बड़ी लेजी सी रूटीन आजकल चल रही है. आई एम सीइंग पीपल अराउंड मी, बच्चे लेट उठ रहे हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, दे डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, नथिंग लाइक एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन, नो फिजिकल एंड मेंटल exertion is there. You need to go for it. You should change your daily routine. It is good for you. It is always beneficial for each and everyone. If we start, suppose we ever fear change, डर तो लगता है चेंज होगा, सुबह उठना पड़ेगा. फाइन, इन योर लैंग्वेज इफ आई एम एक्सप्लेनिंग सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, ऑफिस का टाइम चेंज हुआ, इट इज़ वेरी पेनफुल. लेकिन चेंज इज़ ऑलवेज पेनफुल बट चेंज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव चेंज इज़ ऑलवेज गुड. तो चेंज तो नेगेटिव में भी हो सकता है ना. People can go for bad habits daily, they can change accordingly. But what do we need to do? We need to change for positive things in life. You have to adopt a routine for 21 days only. कुछ भी करना है 21 दिन वो करना है. If you want to learn how to speak English, go for it for 21 days, practice करो. If you want to change your routine regarding leaving your bed early in the morning, go for a change 21 days करो. एक routine set करो. Body clock will wake you up. बॉडी क्लॉक खुद आपको उठाएगी, भाई उठ जाओ, टाइम हो गया. अलार्म भी नहीं होगा, बॉडी क्लॉक विल वेक यू अप. यू वोंट बी एबल टू स्लीप आफ्टर दैट. सो इट इज़ अ रूटीन ऑफ 21 days विच इज़ रियली वेरी गुड फॉर अस. एंड इफ़ वी ऐड समथिंग एक्स्ट्रा, तो हमारे एफर्ट्स ऐड होंगे. एफर्ट्स ऐड होंगे तो रूटीन चेंज होगी. रूटीन चेंज होगी तो व्हाट विल वी गेट? वील गेट गुड हेल्थ, वील गेट पॉजिटिविटी फ्रॉम एवरीवेयर, वील फिनिश आवर टास्क इन टाइम एंड वील बी एबल टू लिव अ फ्री लाइफ, मोर फ्री लाइफ. टाइमली हम काम ख़त्म कर पाएंगे. एंड bringing change in our routine at our workplace, this is what we discussed about your daily routine in general. And if our workplace we change, the soft skills is very important. So the possessing of needed soft skills and talent is essential, not in personal as it is important in professional life also. So when we join a job for our future growth, what do we need to do? We need to change ourselves. सुबह मुझे 9 बजे उठने की आदत है, but for job I have to leave my workplace, my living place at 8 बजे निकलना है, 9 बजे मुझे जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पहुँचना है. इट इज़ वेरी पेनफुल बट यू नीड टू चेंज. आपने शायद एक बटरफ्लाई और ककून की स्टोरी सुनी होगी. इट इज़ वेरी पेनफुल. वो प्रोसेस ऑफ बर्थ जो है ना, बटरफ्लाई की एग से जब वो
लाइफ आती है दैट इज़ वेरी पेनफुल, इट स्ट्रगल्स। बटरफ्लाई का जो एग है, जब उससे वो कोकून निकलता है ना, इट कीप्स नो, इट स्ट्रगल्स अलॉट। कभी देखना, कभी गूगल पे डाल के देखना, एंड इफ़ यू फील लाइक इसको लाइफ को बाहर निकालते हैं हाथ से पकड़ के, इट डाइज। वो स्ट्रगल नहीं करना जानता। सेम इज़ विद आर केस, स्ट्रगल इज़ ऑलवेज पेनफुल, हमेशा पेनफुल रहता है। चेंज इज़ ऑलवेज पेनफुल, चाहे वो टाइमली सोने वाली चेंज है, चाहे वो गुड हैबिट्स इनकलकेट करने वाली चेंज है, चाहे वो सुबह जल्दी उठने वाली चेंज है, चाहे वो स्टडी आवर्स फिक्स करने वाली चेंज, इट इज़ ऑलवेज पेनफुल फॉर 21 डेज। डेवलप अ हैबिट विद इन 21 डेज। 21 दिन सेम चीज़ को करना है, विदाउट ब्रेक करना है। मान लो संडे है, आज 10 बजे तक सो लिए, तो मंडे से फिर आपकी नई रूटीन शुरू होगी भाई, सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 करके 21 डेज तक जाना पड़ेगा। फिर अगले संडे आपने वही किया, फिर आप 21 डेज कॉन्टीन्यूसली करोगे। आपकी बॉडी क्लॉक को एक्टिवेट करने के लिए यू नीड टू go through the process which is painful. You should go through it. So first of all, we need to observe ourselves, what is good for me, what is not good for me. Then we need to observe that specific routine, and we definitely find it difficult to change. जल्दी उठना पड़ेगा तो चेंज होगा, चेंज होगा तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी तो हम बेटर ह्यूमन बींग्स बनेंगे. सो रिजल्ट इज़ ऑलवेज गुड. इन आवर वर्क फ्लो व्हेन वी आस्क आवर सेल्फ व्हाट स्पेसिफिक हैबिट्स वी वांट, तो सबसे पहले क्या आता है, यू विल हैव टू बी वेरी पंक्चुअल. पंक्चुअल रहना है. यू नीड टू बेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कैरी करना है. इट शुड नॉट बी क्लॉक ऑलवेज. घड़ी नहीं देखनी है हमेशा कि अच्छा ये पर्टिकुलर टाइम हो गया, आप जाना है. यू नीड टू फिनिश योर टास्क विच इज़ असाइन टू यू इन पर्सनल एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ. अगर आपको 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप ये नहीं देखोगे मैंने 2 घंटे पढ़ना है, आप ये देखोगे मुझे क्वेश्चन को वाइंड अप करना है. 1 घंटे में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर एफिशिएंसी टू absorb, to learn, and to accept things positively. And there is always something new to learn, you know this well. And productivity is a result of replacing. अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हो, यू आर गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिविटी itself means better life, better opportunities, and success ahead. So what do we need to do? We need to change ourselves accordingly. So adaptability में हमने क्या सीखा? We need to be acceptable, we need to be receptive, we need to change ourselves. अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, रिजिड नहीं होना है. जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कई बार कि वॉट्स एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स यू हैव टू गो फॉर इट. आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करते हो कि वेन एवर यू नीड द पर्सन शुड बी विद यू, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. दैट इज़ वॉट वी कॉल फ्लेक्सिबिलिटी. मेरी हेल्प सारी दुनिया करे, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा ना, आई वॉन्ट बी सीन एनीवेयर, आई विल स्विच ऑफ माई मोबाइल एंड आई विल चिल. So that is not called flexibility, is adjustment. You'll have to adjust according to the situation. I'm not saying of negative things. इसको पॉजिटिव चीज़ों के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं. Go for a very positive routine, go for healthy routine, leave your bed early, learn something new, apply that something in your life, prepare for your exam simultaneously, devote some time for your studies, devote some time for your hobbies, devote some time for your small household chores, devote some time for your studies as well as for your exercise, and devote some time for meditation also, which is really good food for your brain. So we have finished our 3rd unit also. So you'll have to go through all the contents I have discussed with you. When you will go through the content, you will find that it is going to bring a revolutionary change in your personality. Condition सिर्फ एक है, you have to condition yourself. So good day.